Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. In this video, we will be talking about the academic job portal that UGC has created for students who have qualified NET or SET or have completed their PhD degrees and are looking for different jobs in universities, colleges all over the India. So UGC has came up with this idea wherein they have created this shareable ecosystem on which both the candidates who are seeking employment and the universities and colleges who are looking for quality workforce, they will share this space. So this is really a great initiative, especially for a country like India, wherein unemployment rate is so high that people, even after completing the highest degree PhD, they are willing to work at meager wage, or I should say forced to work under circumstances that do not suit their educational qualification at all, and are forced to work at meager wage for their subsistence. So this is a great initiative as candidates will get to know about the vacancies in different universities and colleges, and the employers or the universities, they will directly get to know about the profiles of candidates from the portal. So it will help in streamlining the recruitment processes in higher education institutes, and people will get better job opportunities because of this. As of now, it only includes academic related jobs like lecturership and teaching related jobs, but in near future, UGC is planning to upgrade this portal to include non-teaching jobs as well. So as of now, only teaching posts are available, but that is also a great initiative at the part of UGC, and it will help in streamlining the jobs recruitment processes for higher education institutes. So I will tell you in detail about this academic job portal, but first let's look at the notification that UGC has come up with on 16th of June 2021. That says a lot about this portal and this recruitment process. So indeed, this is a great initiative and people will get better opportunities. But first, let's look at the notification that UGC has came up with, and I will be using bilingual language hereafter so that everyone will get to know what I am saying. तो सबसे पहले आपको UGC की वेबसाइट पे जाना है डायरेक्टली गूगल में. वहाँ पे जाने के बाद आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे, एंड in the notices section, as you can see, the notice that has been published on 16th of June 2021, second notice, that is about the academic job portal. So this is the notes in front of you, which clearly says that University Grants Commission has created the academic job portal at UGC website, which helps NET/SET PhD qualified candidates to bring their academic profile to the attention of universities, colleges, and other employers with the ultimate aim to get them a suitable job. And the portal facilitates candidates to register and create their profile online. इस पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा. अभी फ़िलहाल हम इस नोटिस को अच्छे से देख लेंगे. सो इस नोटिस का ये मतलब है कि कैंडिडेट्स को जॉब वैकेंसीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड एम्प्लॉयर जो होंगे दे विल ब्राउज द एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल. And as of now, the portal is available for teaching jobs only, but UGC plan कर रहा है कि इसको अपग्रेड करेंगे in near future so that they will include the non-teaching vacancies also. और UGC has also requested the vice chancellors of all the universities कि वो जो है इस पोर्टल पे टाइम टू टाइम अपनी वैकेंसीज़ को अपलोड करते रहें, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं दे विल गेट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वैकेंसीज़ और वो अप्लाई कर सकें. सो ये थी आपकी नोटिफिकेशन जो कि UGC ने जारी की है रिगार्डिंग एकेडमिक जॉब पोर्टल. अब इस पे रजिस्टर कैसे करना है आपको उसके बारे में हम जानेंगे, और किस तरीके से आप ये पोर्टल काम करता है. तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली गूगल में जैसे UGC जो है एकेडमिक पोर्टल लिखेंगे, एकेडमिक जॉब पोर्टल लिखेंगे, तो आपको डायरेक्टली जो है ये एकेडमिक जॉब पोर्टल पे ले जाएगा. सो दिस इज़ द मेन पेज विच हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर NET/SET PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट और जॉब्स है विच हैज़ नो लेटेस्ट पोस्ट जॉब्स. अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने अपनी वैकेंसीज इस पर नहीं डाली हैं. And on the right hand side we have these candidates profile. नेट कैंडिडेट कितने हैं, नेट JRF कितने हैं, सेट कैंडिडेट्स कितने हैं, और PhD कैंडिडेट्स कितने हैं.
और आप डायरेक्टली अगर पीएचडी में देखना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज दिस इज़ द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इसी तरीके से सबसे कम पीएचडीज़ जो हैं वो लैंग्वेज में आप पाएंगे, डिफरेंट जो है इंटरनेशनल एज वेल एज़ नेशनल लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपको स्कोप भी पता चलेगा कि किस फील्ड में कितना स्कोप है। इसी तरीके से नेट कैंडिडेट्स हैं कितने हैं सब्जेक्ट वाइज ये भी है, जेआरएफ कैंडिडेट्स कितने हैं ये भी सब्जेक्ट वाइज है। एंड यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग नेशनल फेलोशिप्स अदर दैन द नेट जेआरएफ, जैसा कि मानव किसी को मिल रहा है या नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, या शेड्यूल ट्राइब्स की फेलोशिप है, या पीडब्ल्यूडी की फेलोशिप्स हैं, वो सब फेलोशिप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेट दी जाती हैं। तो उसको ऑफ नेट जेआरएफ कंसिडर ना करें। तो यहाँ पे जब आप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आप खुद को जो है ओनली नेट पे रजिस्टर करेंगे, ताकि जब आपकी वेरिफिकेशन होगी लास्ट पे तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए। तो रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड दिस कॉलम। तो यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स है रजिस्टर, लॉग इन, क्रिएट, अपडेट प्रोफाइल, सर्च जॉब्स। तो आप जैसे कि कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर करना है आपको, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ये एक छोटा सा आपको फॉर्म निकलेगा, ऑनलाइन फॉर्म, इसको फिल करेंगे, ठीक है। और देन दिस सिक्योरिटी की, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा और आपको फिर लॉगिन करने के लिए कहेगा। कैटेगरी में कैंडिडेट लिखेंगे, यूज़र नेम और ईमेल आईडी वही अपना जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उसी को यहाँ पे आप भरेंगे। ध्यान रहे जो ईमेल आईडी होगी वही डालिएगा जो एक्टिव होगी, ताकि आपको आगे से कोई दिक्कत ना आए। और पासवर्ड भी ऐसा रखिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। एंड देन सिक्योरिटी की, इसको भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे क्रिएट एडिट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, सो दिस इज़ माय ऑप्शन। तो आप इसको क्लिक करेंगे। सो दिस इज़ द कास्ट जो आपकी होगी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस डाल देंगे, सेव करके आगे चलेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके चलेंगे तो डायरेक्टली आप जो है दूसरे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस का आपसे पूछा जाएगा। इसको आप प्रोफाइल को कंटिन्यूसली अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज़ आपकी पब्लिकेशंस हो रही हैं कंटिन्यूसली तो आप उसको अपडेट करेंगे। और इस वक्त क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबल एग्ज़ाम जो है, आपने नेट किया है तो नेट लिखेंगे, नेट जेआरएफ किया है तो नेट जेआरएफ लिखेंगे, ठीक है। सेट भी किया है, पीएचडी कर रहे हैं या किया है। एंड उसी तरीके से आप अपना जो है ईयर ऑफ पासिंग नेट जेआरएफ लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट। तो सारा डिटेल्स जो है आप 10th के मार्क्स, अपने 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम, और उससे पहले कहीं काम किया है तो कितना काम किया है, कब तक काम किया है, वो सब आप इसमें डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद आप पब्लिकेशन डिटेल्स में जाएंगे। पब्लिकेशन डिटेल्स में आप अपने, अगर आपके पास पेपर्स होंगे तो उसके बारे में, फिर डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन के उसमें आप साइन करेंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन इज़ ट्रू, और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है और आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए तैयार हैं अंडर द ऑल द गाइडलाइंस दैट यूजीसी हैज़ फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये आपका प्रोफाइल कंटिन्यूस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो है टाइम लग रहा है कंटिन्यूस करने के लिए, जैसे कि 10th के मार्क्स डालने हैं, 12th के तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो दैट विल बी, वीडियो विल गो वेरी लॉन्ग, तो मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करूँगा। इस तरीके से आपका जो है प्रोफाइल यहाँ पे बन गया। तो आप कभी भी लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को जो है टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। आपका पब्लिकेशन हो गया तो डाल दिया नेक्स्ट पब्लिकेशन, तो है उससे जो है आपका एपीआई स्कोर बढ़ता रहेगा, ठीक है।
तो आपके जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपकी अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले। तो अगर आप ब्राउज़ करना चाहते हैं सपोज़ पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास दो डेटाबेसेस हैं मेनली इंडिया में, दैट इज़ इंडकैट एंड शोधगंगा। जो शोधगंगा है उसमें पीएचडी थीसिस आपकी अवेलेबल है, और इंडकैट जो है वो ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया की। तो ये था आपका एकेडमिक जॉब पोर्टल विच यूजीसी हैज़ कम अप, विच इज़ रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ये आपको डायरेक्टली यूजीसी की वेबसाइट पे मिलेगा, तो इसके लिए आपको रजिस्टर, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्टर कर लें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस रिलेटेड कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट दैट आई गेट द मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।